हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये पेरेंटिंग से रिलेटेड नहीं है। देयर इज समथिंग स्पेशल व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। जैसे हम बहुत सारी मदर्स हैं, हम घर पे बैठे होते हैं, हम अपना पूरा बच्चों का काम करना, फैमिली का काम करना एंड guest, relatives, society, so many things we are taking care of and still we think that हम कुछ नहीं करते। अगर हमसे पूछा जाता है कि आप क्या करती हैं या फिर आपके हस्बैंड क्या करते हैं, मेरे हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं। आप क्या करती हैं? आई एम हाउस वाइफ, मैं घर में रहती हूँ। मतलब why can't you say yourself as a house manager that you are managing everything more than anything? Why I am telling you this? Because before marriage I used to work and I know how when you go to office and when you are working at home, what is the difference between the work? Both are important. I'm not saying those who are going to offices is easy, those who are not going, that is tough. I'm telling you, working something which is predictable and which your brain is you're using brain to do work, that is easy. You have some predictable schedule, but when you are working at home as a housewife or as a mother, you don't have any predictable schedule. Anytime any work can pop up, और उस बीच में आपको अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है कि नहीं, now I'm taking care of my family and I can do something. But for that you need a huge energy, you need enthusiastic, your nature should be very very much enthusiastic. You should have some kind of zeal, fire होना चाहिए पीछे कि भाई ये मुझे करना है. How that comes? Hi, I am Kashi Sandhu, your parenting coach. I help mother to make their parenting journey easy. I help mother to come out from their comfort zone and start working for themselves on their health, on their mental and emotional things, or maybe sometime they become financially independent. So what is the secret behind it? There is only one secret, that you have to write what exactly you are looking for in your life. So if you see, I have lots of diary, one, two, three, four. These are the diaries. Here I write things to do, and here I write what every day I am achieving. These are my ID, password, or everything what I need to remember. You know why I keep so many diaries? And let me tell you, one more diary is there. This is what miracle journal, where I write everything which I achieved and which give me happiness. And this is not for any other person. This is for myself, because I know in this busy world we forget so many things, and we always think that, do you know how I write books? I wrote I wrote two books, which is one is Rise and Shine, the story of a girl, and 3P Golden Tips for Easy Parenting. And these are the book related to the parenting and how the ideas uh, coming in my mind. Because every time when the ideas are coming, I have one diary, I just write it down. क्योंकि आप बुक एक दिन में नहीं लिख सकते, एंड यू डोंट हैव अ मैजिक दैट ओ मैजिक विल कम, you will sit and write everything. You need to have lots of idea, you need to collect lots of information, then only you can write down a book, and there should be a particular niche. So today I'm going to tell you few myths which people says that ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था. मतलब they will give certain reason, and I'll tell you 10 where people are lacking to achieve something. I'm not saying I have achieved so much, but while working for home, taking care of my children, and the work is so intense. In today's world, if you're taking care of two children, it is really, really hectic, a fish market, you can say. So, out of that, I'm taking out time and doing my this work. This is just my passion. Not only this work, the work I started, but I started many business. I failed. I again started, failed.
because all these failures are giving me some lessons that don't stop, Kashish. You can do anything. So let me tell you, if you want to start something, if you have some talent, small talent, you can make it uh, as your core and you can earn out of that. So अगर आप छोटे क्रिएटर हो, आपको लग रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ स्टक हो गई है, या ऑलमोस्ट आप क्विट करने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको YouTube के 10 बड़े मिथ बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपना चैनल को मोनेटाइजेशन तक ले जा सकते हैं। मींस मोनेटाइजेशन होने के बाद भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग आपको बिना किसी चीज के बहुत सारे शॉर्टकट्स बताएंगे, वो आपको अनरियलिस्टिक वे में नहीं जाना है। तो पहली मिथ है कि वीडियो अपलोड करने की बाद आप सब जगह शेयर कर दो, जैसे ग्रुप हो गया, रिलेटिव हो गया, फ्रेंड हो गया। सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ना, ये आपको जानते हैं। दूसरा, रिलेटिव आपको कभी आगे बढ़ने के लिए आई डोंट थिंक सो दे विल हेल्प यू, एंड फ्रेंड्स they all will say yeah doing good and behind the back they will not at all help you. So these are the 3 places where you need not to share it. Just make a video, post it and just leave it. You can boost your video, you can put some ad, but do not think that if you're sending to your friends, family or group, you will get some achievement out of that. रिक्वेस्ट करते हुए थक जाओगे लेकिन कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। दूसरी चीज, आप ये सोचते हो कि मैंने चैनल ओपन कर लिया है लेकिन मेरा तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगा क्योंकि मुझे तो बहुत लोग जानते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव हैं। सो सच ये है कि आपकी पहली जो रियल ऑडियंस होगी वो स्ट्रेंजर्स होंगे, जो आपको जानते भी नहीं है पर कंटेंट से कनेक्ट करते हैं। कंटेंट अच्छा हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप पड़ोसी देखे या रिलेटिव देखे, ना देखे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए आपको फोकस किस चीज पे करना है? कंटेंट अच्छा बनाने में। मिथ नंबर 3 है कि फॉलोवर खरीद लो और मोनेटाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें 4000 आर की प्लस 1000 फॉलोवर, तो अगर आप फॉलोवर खरीद लेते हैं या फिर आर भी किसी तरह से पूरे कर लेते हैं तो भी आपको मोनेटाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा, क्योंकि होने के बाद भी आपको एंगेजमेंट चाहिए। मतलब आपका अकाउंट ओपन हो गया लेकिन आप के डेड फॉलोवर हैं, डेड एंगेजमेंट है। ऐसे में समटाइम यूट्यूब जो है चैनल रिजेक्ट कर देती है और बाद में डीमोनेटाइज भी कर देती है। सो आपको कोई भी ऐसी अनएथिकल अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे। चौथी चीज आपको करना है कि जब भी आप कोई कंटेंट क्रिएटर की चीजें शुरू करें तो डोंट बी चीप इन योर जर्नी। आपको अच्छा माइक लेना है, एक अच्छा कैमरा लेना है और इससे आप अच्छी वीडियो बनाएंगे। क्योंकि मैंने नोटिस किया कि इनिशियली जब मैं अपना काम करती थी तो आई यूज्ड टू आस्क समबडी टू मेक माय थंबनेल, लेकिन जब से मैंने अपने सिस्टम ऐप सब कुछ लिए हैं तो मैं बहुत सारी चीजें बहुत अपने अच्छे वे में करती हूँ एंड आई एम लर्निंग एवरी डे। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आपका अच्छा मोबाइल हो, क्लैरिटी अच्छी हो और आप जब भी वीडियो बनाएं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। सो अगर आपके पास बहुत महंगे कैमरे भी नहीं है, अगर आपका अच्छा सेटअप है या फिर आपने अच्छा कंटेंट बनाया है, अच्छा मैसेज किया है, तो डेफिनेटली आपका वीडियो अच्छे से लोग देखेंगे। आपको बहुत महंगी-महंगी चीजें लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 5 है कि रोज वीडियो डालना जरूरी है, तभी चैनल ग्रो होगा। सो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप वीक में 2 या 3 वीडियो भी अगर डालते हो बट आप कंसिस्टेंट हो तो भी आपको चैनल अच्छा चलेगा। सो रोज वीडियो डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी वीडियोस डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो।
मिथ नंबर 6 है कि व्यूज कम आ रहे हैं मतलब आप फेल हो रहे हो। सच ये है कि इनिशियल फेज में सबके व्यूज नॉर्मल आते हैं, कम आते हैं। यूट्यूब टेस्टिंग करता रहता है कि आपके कंटेंट्स कैसे हैं। जब आपके कंटेंट्स अच्छे होते हैं तो व्यू अपने आप आने लग जाते हैं। और इनिशियल फेज में मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी चैनल पे बीच बीच में ऐड डालते रहिए, क्योंकि रीच उसी से बढ़ता है। आजकल ऑर्गेनिक रीच बहुत कम है, क्योंकि लोग आपस में ही एक दूसरे से जले पड़े रहते हैं, तो कहाँ से ऑर्गेनिक रीच होगा। इसीलिए अगर आपको व्यू चाहिए तो अगर अननोन फॉलोअर्स के पास आपको भेजना है तो डेफिनेटली आपको ऐड जरूर डालना है। मिथ नंबर 7 है कि सिर्फ वायरल कंटेंट से ही मोनेटाइजेशन होता है। मतलब आपका एक रील वायरल हो गया या एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो गया और आपको लगा कि नहीं अब तो सब कुछ हो गया। नहीं, यूट्यूब में वॉच टाइम, रिटेंशन और ट्रस्ट ये मोनेटाइज करता है। वायरल होना जरूरी नहीं है। अगर आप वायरल भी नहीं हुए देन ऑल्सो यू विल गेट मोनेटाइज। मेरा तो कोई रील वायरल नहीं हुआ। आई मेक लॉन्ग कंटेंट्स ओनली। तो मेरा मोनेटाइजेशन ऑलमोस्ट जून 2025, 19 जून 2025 मुझे पूरा याद है। मैंने अपना यूट्यूब शुरू किया और 25 नवंबर को मेरा मोनेटाइजेशन मेल आ गया था। सो इफ यू आर कंसिस्टेंट, योर कंटेंट्स आर गुड, you will get. But patience is the key in YouTube and all. और मिथ नंबर 8 है कि एक ही निश में फंस गए तो बोर हो जाएंगे। मतलब अगर आपने पेरेंटिंग निश लिया तो आप कॉन्टिन्यूसली उस पर वीडियो बना रहे हो तो आपको लगता है कि ऑडियंस आपको सुन सुन के बोर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको एक ही निश में रखना है जिससे कि लोग आपको आइडेंटिटी बनाए कि अगर पेरेंटिंग के लिए जाना है तो कशिश के पास जाना है। So that should be, you should be very clear about your niche. When you are very clear about niche, public will be very clear that where we have to go. Myth number 9 है कि डिस्क्रिप्शन, टाइटल, थंबनेल मैटर नहीं करता। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैं कोई भी वीडियो क्लिक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अरे ये क्या लिखा है या फिर किस तरह का थंबनेल है। यही 3 चीजें डिसाइड करती हैं कि वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है ऑडियंस को। तो आपका डिस्क्रिप्शन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए, आपका टाइटल अच्छा होना चाहिए, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिथ नंबर 10, जो कि ज्यादातर लोग, जब आप फेलियर हो जाते हो और आपको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं होती और वो आप बोलते हो कि नहीं मोनेटाइजेशन सिर्फ लकी लोगों को होता है या फिर लक से ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब के साथ किसी की रिश्तेदारी नहीं है। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी प्लस पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी से आता है, लक नहीं, सिस्टम का गेम है ये। सो अगर आपको ये 10 मिथ समझ में आई हैं, आप किसी भी तरह का एक स्किल रखते हैं और अगर आपको लगता है कि यस आई कैन मेक वीडियोस, आई कैन डू दिस, और अगर आप हाउसवाइफ हैं, मतलब अगर आप होम मेकर हैं और आप चाहती हैं कि यार कुछ तो हो कि मैं अपने आप अपनी आइडेंटिटी बनाऊं, अपना कुछ कमाऊं, तो आप जरूर अपना कुछ छोटा मोटा चीज शुरू कीजिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये चीजें मुझे क्यों लगती हैं, क्योंकि आई रियलाइज सम हाउ दैट पीपल रिस्पेक्ट यू व्हेन यू अर्न समथिंग, and that's the world, and that's the bitter truth. So if you want that if you need any kind of help for step by step YouTube channel growth, कैसे कैसे आप कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, अगर आप कंसिस्टेंट हैं, you can write in the comment box, please tell. एंड याद रखो क्विट करना ऑप्शन नहीं होता। जब आप सही डायरेक्शन में जाते हो ना तो आपका ऑटोमेटिकली चीजें बनने लगती हैं। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल।